علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ناظم اجلاس نے جو کچھ بھی کہا میرے متعلق سچ ہے، اور میں یہی عرض بھی کرتا ہوں یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور اب ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، اور ہر مومن کا یہی شیوہ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے، اور ہم سنی تو الحمدللہ بچپن سے یہی جانتے ہیں، ہمارے مرشد نے ہمیں یہ گٹھی میں گھول کر کے پلایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہیں تو پھر یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب یہی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتاؤں، اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیوریٹی، سب سے اہم چیز کوئی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی جو عزت ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نام سے وابستہ، اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں تو تمہارا وجود بھی خطرے میں ہے۔ اور یہ ہم آج جیتی جاتی تصویروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف شامت اعمال ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے متعلق اگر امت نے ہلکے پن کا احساس کیا تو پھر ہماری عزتیں خطرے میں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر تمہارے گھر کا کوئی پینٹ یا کھڑکی یا دروازہ تھوڑا کھرچتا ہے، نکالتا ہے، توڑتا ہے، تب بھی گھر آپ کا سلامت ہے، تھوڑی مرمت کے بعد پھر گھر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر کا مین پلر ہے وہ کوئی ہلا دیتا ہے تو چھت ڈہ جائے گی، پورا گھر اندر زمین میں دھس سکتا ہے۔ تو آپ اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں جو میرے گھر کی دیوار پر لکھ دیا یا پینٹ کا خراب کر دیا یا دروازے کو توڑ دیا، کھڑکی کو توڑ دیا، ان چیزوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے پلر کو کوئی ہلا رہا ہے تو گویا کہ میری پوری چھت زمین بوس کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، ہماری ٹوپیاں چھن گئی،
दाढ़ियां छिल गई, या फिर हमारी खानकाहें मसाजिद के साथ बेहुरमतियां हुई, ये वो मामलात हैं जिसको लड़ते भिड़ते हम सही कर लेंगे, लेकिन नामूसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर पाक की इज्जत हम सब के लिए वो अजीम पिल्लर है कि अगर ये हिल गया तो पूरी कायनात की हमारी इज्जत खत्म है। ये वो अजीम पिल्लर और उस सुतून का नाम है। इसी को तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अगर नबी पाक नहीं तो कुछ नहीं है। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, याद रखो, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए तुम हसास नहीं, अगर तुम सेंसिटिव नहीं है, तो फिर बेगैरत लाशें हैं जो सिर्फ जमीन पर घूम रही है। और अगर एहसास बेदार है तो फिर चाहे तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, लेकिन तुम्हारा वजूद बड़ा कीमती होगा। हमने दुनिया में देखा है, तुम्हारे गाड़ी बंगले और तुम्हारे तख्त और ताज से दुनिया घबराती नहीं। तुम बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी अपने लिए फौज तैयार कर लो, अपने लिए बहुत ताकत तैयार कर लो, कुछ भी कर लो, उससे तुम किसी के दिल पर हैबत नहीं डाल सकोगे, उससे तुम किसी के ऊपर रौब नहीं डाल सकोगे। हैबत और रौब अल्लाह की तरफ से डाला जाता है। और हमने देखा है बड़े बड़े ताकतवर एक जगह खड़े रह जाते हैं, और कभी कोई व्हील चेयर पर माजूर बैठने वाला आलिम पूरी दुनिया को हिला करके रख देता। किस बुनियाद पर, किस बुनियाद पर? यूरोप थरथरा रहा है, इंग्लैंड, हॉलैंड, न जाने कई कंट्रीज ऐसी हैं, वहां से लोग बिलबिलाए हुए कहते हैं एक मौलवी बड़ा डेंजर है, पैरों से माजूर है लेकिन लब्बैक कहकर पुकारता है, तो कई लोगों के चूल्हे हिलते हैं। इससे पता चला ताकत सिर्फ ताज का नाम नहीं, ताकत कुर्सी का नाम नहीं, ताकत फौज का नाम नहीं, असल ताकत इश्क मुस्तफा का नाम है। अगर ये सीने में मौजूद है, अल्लाह करीम खुद तुम्हारा रौब डाल देता है, तुम्हारी हैबत डालता है। इसीलिए इस दौलत को हम चाहते हैं कि तुम्हारे सीनों में, मैं मायूस नहीं हूं, मैं इस तरह की बातें करने का कायल भी नहीं कि तुम्हारे सामने से सब कुछ खत्म हो गया। दुनियावी असबाब तो आते जाते रहते हैं, माल आज है खत्म हो जाएगा कल, या किसी के पास नहीं है कल आ जाएगा। आज तुम्हारे पास तख्त नहीं, कल आ सकता है, जिसके पास है वो जा भी सकता है। ये सारी चीजों के सिलसिले में मैं नहीं अर्ज कर रहा। तुम्हारा मसला ये है कि अगर तुम्हारे सीनों में जो दबी हुई चिंगारी है इश्क मुस्तफा की, अगर ये थोड़ी सी इसकी लौ बढ़ जाए और ये चिंगारी शोला बन जाए, बस फिर किसी और ताकत की हमें जरूरत ही नहीं, फिर किसी ताकत की जरूरत नहीं। इसलिए कि तारीख में हमने पढ़ा है, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दिशे दौरा भी घबरा गई। वो कौन सी ताकत थी जो बद्र के मैदान में निहत्ते 313 थे, जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं थे और हाथों में तलवारें भी नहीं थी, लकड़ियां लेकर लड़ रहे थे, लेकिन 1400 साल से आज तक तारीख इस बात की गवाह है कि 1000 से ज्यादा लोगों पर उन्हीं 313 लोगों को रब्बे जुल जलाल ने ऐसा गालिब किया कि दुनिया की तारीख में मौजूद है। वो बद्र का वाकया भी, उहद का वाकया भी, खैबर भी, और सबसे बढ़कर के पूरी दुनिया को हिला देने वाला वाकया करबला का मैदान भी देखा है। निहत्ते लोग थे, लेकिन बाकी 22,000 भी बड़ी तादाद के साथ इस्लाम का कुछ खत्म ना कर सके। आज भी नाम हुसैन जिंदा है या नहीं? घर घर जिंदा है। मैं आपसे यही कहता हूं, ये दौलत हर जमाने में हमारे पास रही है, वो इश्क मुस्तफा की दौलत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ 12,000 का लश्कर लेकर मैदान में उतरा था। ये वो वक्त था जब 4 लाख सलीबी लोग मुकाबिल में आए थे।
4,12,000 के मुकाबले में सलाउद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा क्या किया जाए। फौजियों ने कहा, है हमारे सिपह सालार, अगर रसूलुल्लाह के सहाबा भी तादाद देखकर उतरते थे हम भी देखेंगे, अगर वो तादाद नहीं देखते थे तो हम भी बगैर देखे उतरेंगे, इसलिए कि हमारा यकीन तलवारों पर नहीं, हमारा यकीन खालिक तलवार रब्बे जुल जलाल पर है। वही आयत मैंने तिलावत की, यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे कोई गालिब आ ही नहीं सकता, कोई गालिब नहीं आए। वइन यख्ज़ुलकुम, और अगर वो तुम्हें गिरा दिया रब ताला, फमन दल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, कुरान में रब ताला फरमाता है फिर कौन है अल्लाह के बाद तुम्हारी मदद कर सकता हो, कौन है। पूरी ताकतें मिलकर के तुम्हें खड़ा नहीं कर सकेंगी, एक सांस तुम्हें नहीं दे सकती दुनिया, अगर रब तबारक व तआला तुम्हें गिरा दे, छोड़ दे, पूरी ताकतें जमा करके भी तुम खड़े नहीं हो सकोगे। इसीलिए कुरान की बात सुनो, करना क्या चाहिए, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, कुरान कहता है मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पर ही भरोसा रखे, वो रब्बे जुल जलाल पर यकीन कामिल रखे। मेरे अजीजों, ये हालात आते जाते रहते, बदलते रहते हैं, मुसलमान को इन तमाम हालात से घबराना नहीं चाहिए, इन हालात से घबराना नहीं चाहिए। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, मॉब लिंचिंग आज से नहीं मक्का की सरजमीन से चली आ रही है। क्या बिलाल हबशी को पकड़ करके औबाश और बदमाश कुफ्फार मारते नहीं थे, उनकी नंगी पीठ पर गरम सिल रखी नहीं जाती, अंगारे दहका कर नहीं लगाए जाते, इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े नहीं मारे गए, कई सहाबा ऐसे, एक बुजुर्ग हजरत शेख अबू बकर नाबुलसी हैं जिनको उनको कैद करके एक खाल में बंद करके तकरीबन 1 महीने तक रखा गया था, और फिर उसके बाद वक्त के बादशाह के सामने उन्हें पेश करके उनके सीने से लेकर के पैरों तक चाकू से खाल छील करके निकाली गई थी, और पूरे जिस्म के अंदर खाल उतारी जा रही थी। कोई मुसलमान कसाई तैयार नहीं हुआ था तो एक यहूदी को लाया गया कि खाल निकालो शेख अबू बकर नाबुलसी की, और पूरी खाल निकल गई। तब भी वक्त का बादशाह पूछ रहा था अबू बकर नाबुलसी से, आप क्या कहते हो, दर्द की शिद्दत तो देखो, दर्द की शिद्दत तो देखो, हमारे मुकाबिल में आए कैसे। शेख अबू बकर नाबुलसी ने कहा, मैं हुसैनी हूं और मेरी खाल निकल गई, ये कोई बड़ी बात नहीं, रसूलुल्लाह के घर वालों ने तो अपने बच्चे भी कटा दिए, छोटे छोटे बच्चे भी दे दिए, उनकी पूरी खाल निकाल ली गई थी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये जो हालात आते हैं ये तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं, ये तमाम सख्तियां जो आई है तुम्हारे कदमों के अंदर, अब लर्जा तारी नहीं होना चाहिए, अब इस्तिकामत के साथ मजबूती के साथ जम जाओ। इसलिए कि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके बताओ, जिस दीन इस्लाम पर तुम कायम हो, इस दीन इस्लाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सबसे सच्चा दीन है या नहीं। तुम जिस रसूल के पैरोकार हो, क्या वो कायनात का सबसे सच्चा रसूल है या नहीं। तो फिर हमारा जुर्म क्या है, मेरा दीन सच्चा है, मेरा रसूल सच्चा है, अब हम चेहरा छुपा कर नहीं बल्कि गर्दन उठा करके बात करें।